Good afternoon, everyone. So, I welcome you all to the unit number 2, that is extended surface and transient heat conduction. So far, in the first part of the unit number 2, that is fins or extended surface, we have seen three parts or three types of fins, that is infinite fin, short fin without tip insulation, and short fin with tip insulation. And in the second part of unit number 2, that is transient heat conduction or lumped heat analysis or lumped capacitance, we are going to see. So in unit number 2 second part, we have already seen that in unsteady state heat conduction or transient heat conduction, we have seen that there are periodic and non-periodic types of heat transfer. So in case of transient heat conduction or unsteady heat state, we have seen some introduction point, and today we will see what is non-periodic and transient, or we can also call it as lumped capacitance. So this lecture is going to be very much important for your university examination point of view as well as GATE examination. So far as concerned to the competition, every year one question or two questions are expected from this topic. So I would request all of you to please focus on the concept, and whatever I am giving or delivering the concept to you will be very much important, right? So today, let's start our lecture with non-periodic transient heat conduction. So we have seen that if temperature is going to vary with respect to time, that is called non-periodic heat transfer. So in case of non-periodic, what we will see is heading is our non-periodic non-periodic transient heat conduction. This is the topic where we are going to focus. So in case of non-transient, we have seen that suppose we have some kind of vessel and a solid material or heated solid material is if filled, then what will happen? Heat transfer will take place in the solid body by the conduction. So here it is R conduction that we have already seen. Heat transfer from the solid surface to this liquid zone will be heat transfer by R convection. Here also heat transfer will be taken due to R convection. So if there is some solid material, then it will have some thickness, that is delta, right? So here it will be R thermal conduction, and here it is R thermal convection. These are the concept which we have already seen. So in case of non-periodic transient heat conduction, what we have seen that when a heated material or heated component is quenched in liquid medium, then heat transfer through solid to liquid medium takes place by two phenomena. That is two phenomena. That is from inside of solid body to surface of solid body, that is conduction from inside of solid body to the surface of solid body, and corresponding to this conduction R thermal of conduction was. These things we have already seen in the previous lecture, but again just for sake of understanding, just I am capitulating it, right? So delta upon Ka. Second one will be from surface of solid body to liquid medium, that is convection. That is convection. And in case of convection, corresponding to convection, the R thermal convection will be 1 upon HA. K is thermal conductivity, watt per meter Kelvin. H is heat transfer coefficient, watt per meter square Kelvin, right? So based on the relative values of R conduction and R convection, the non-periodic transient heat conduction can be classified or categorized in three sections. That is, three sections will be: first, R conduction is very much less than R convection. Second part or B part, you can call it as R conduction is almost equivalent to R convection.
And third part was when R conduction is very much greater than R convection. So on the basis of these two thermal resistance, we have categorized or classified non-periodic transient heat conduction into three categories. That is, when R conduction is very much less than R convection, when R conduction is almost equivalent to R convection, and R conduction is greater than R convection. That is, delta upon Ka is compared with 1 upon Ha. So in case of non-periodic transient heat conduction, we have classified or categorized it into three sections, and that those three sections have been given. So first of all, we will discuss the case number 1. So what is case number 1? So let's choose some another ink, and then we will classify it, right? So first part is when R conduction is when R conduction is very much lesser than R convection. What will happen? So in that case, R conduction is delta upon Ka. R conduction is delta upon Ka, that you are very much familiar with. So this is going to be 0, almost 0. If it is lesser than R convection, then suppose delta upon Ka is going to be 0. So in case of delta upon K equals to 0, either delta will be 0 or Ka will be 0. But delta cannot be 0. Delta cannot be 0. Why? Because if delta is 0 means there is no any solid body which is being quenched inside the liquid material, right? Or liquid. So if delta is 0 means there is no solid body, so delta cannot be 0. So in that case, what will happen? A cannot be 0, because if delta is not 0 means there will be some area. So here what will happen? K is going to be infinite. If K will be infinity, then there will be condition when delta upon Ka is turning out to be 0. So if K equals to infinity, means this problem is also called as infinite thermal conductivity problem. Infinite thermal conductivity problem. So it is infinite thermal conductivity problem, right? So case number 1, that is R conduction is when very much lesser than R convection. So this phenomena or this case can be also called as infinite thermal conductivity problem. This is very much important because in competition and your university examination, they can also ask the question on the basis of infinite thermal conductivity problem, or they can also write it as when R conduction is lesser than R convection. So what will be the phenomena, right? So let's move to the next slide, and what we are going to see here, suppose if there is negligible internal temperature gradient problem, means what will happen if R conduction is 0, if R conduction is 0 means there is no resistance. It means there is no resistance, which we have seen. Resistance. There is no resistance to change temperature. To change temperature. It means if R conduction is 0 means there is no thermal resistance due to solid body, and if there is no thermal resistance, then what will happen? There is no any kind of resistance which is going to offer temperature change, temperature decrease or increase, but temperature change means temperature variation across thickness is 0. It means dt upon dx, temperature change across this length is going to be 0. So dt upon dx will be 0. This is also called negligible internal temperature gradient problem. This is also called as negligible
Jibal internal temperature gradient, internal temperature gradient problem, gradient problem. So infinite thermal conductivity problem or R conduction is lesser than R convection can also be called as dt upon dx equal to 0 because there is no any resistance which is going to offer change in temperature, means negligible internal temperature gradient problem. Negligible means dt upon dx temperature gradient, and why it is internal, because we are talking about solid body, and solid body has been kept to be quenched inside the liquid medium, right? So what will happen as the resistance offered? What will happen? What is the use of resistance? So resistance offered for flow of heat from inside to surface of solid body is negligible. It means it is negligible. So the flow of heat is of the inside of the surface of solid body is taking place by lumped methodology. But even though heat transfer is taking place, if R conduction is 0, means there is no any resistance offering temperature decrease even though heat transfer is taking place. So this heat transfer is taking place due to the lumped methodology. This is also called as lumped methodology. Methodology. I repeat, if dt upon dx is 0 means there is no any resistance offering even though heat transfer is taking place. That heat transfer is taking place by the method of lumped methodology, and this is also called as lumped analysis. So what we are going to see, so in this fresh lecture we are going to discuss lumped parameter, lumped heat parameter analysis. This is very important. Lumped heat parameter analysis problem. Analysis problem. One question or one derivation is every year asked in your university examination as well as GATE and IES and all kind of competition. It is very important. It is very important. Plus university examination. University. So it is very important. Which one? Lumped heat parameter or lumped heat capacitance. This is also called a lumped heat parameter analysis or lumped parameter. So let's discuss lumped heat analysis. So our heading will be lumped lumped heat parameter, lumped heat parameter analysis problem. Analysis problem. This is very important for your university examination as well as competition. So you have to focus precisely over it. This is very important for GATE because every year 2 marks question is asked from this topic. Every year means you can analyze how important this is. So let's analyze. Let's suppose K is the thermal conductivity of solid body. If K will be the thermal conductivity of solid body, thermal conductivity of solid body. Which solid body? The body which is being quenched or which has been kept into the liquid medium. This one I am talking about. This one, this is liquid zone, and I am talking about this solid body, right? Which delta is the thermal, delta is the thickness, k is the thermal conductivity, right? So k is the thermal conductivity of solid body. V is the volume of solid body. V is the volume of solid body. Volume of solid
body. A is the surface area of solid body. A is the surface of the solid body. So K, B and A, all these are related with the solid body, right? And rho is the density of solid body. It is density. It is density of solid body, right? Cp is the specific heat of solid body. Specific heat. All of you are very much aware about what is specific heat of solid body. So in case of solid body, Cp and Cv is same. You know that. Ti, this is very important. Ti is the initial temperature of solid body. Suppose it is initial temperature of solid body. What is initial temperature? Means we are talking about the temperature which is this one, Ti. So Ti is the initial temperature of solid body. T is the temperature of solid body after time tau. Suppose T is the, so these notations are very important. What is Ti, what is T, what is T naught, what is T infinity, these are very important. So this is temperature of solid body after time tau. Here I am denoting time with tau. This is tau means time. It is time, right? So T is the temperature of solid body after time tau. Means if solid body is being kept inside the liquid medium and initially when temperature is Ti, and if it is being quenched into the liquid medium, then there will be some temperature T after some time tau, because it is being quenched. So temperature will be changing with respect to time here. Temperature is changing with respect to time. Temperature means the surface temperature. The surface temperature is being changing. Ti means surface temperature being changing with respect to time, that is tau. And what is T infinity? T infinity is the temperature of liquid medium. It is temperature of liquid medium, temperature of liquid medium of fluid assumed to be constant, of fluid which is assumed to be constant, assumed to be constant. It is assumed to be constant because variation of temperature is zero. Variation of temperature is almost zero. And H is, suppose, heat transfer coefficient of liquid medium. H is the heat transfer coefficient of liquid medium or liquid media, right? H is the heat transfer coefficient of liquid medium. So K, V, A, rho, Cp, Ti, T infinity, H, these are very much important. So what we are going to apply? So here we will apply the heat balance equation, right? So here I think it is very much clear to all of you. Let's summarize it once again. If solid body is being kept inside a liquid medium in which is in a vessel, then if initial temperature at Ti and this temperature Ti is being changing because it has been kept inside the liquid medium to quench. So Ti will be turning out to be T after some time tau. Means what we are going to see, what is our motto here? So we will see the variation of temperature Ti to T. Ti से टेम्परेचर T कैसे बनता है और कब कितना टाइम में, तो tau टाइम में. ये चीज हमें देखना है. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसके लिए कुछ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, कुछ एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये सारा चीज अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व किस टाइप से या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन क्या बन करके आता है, राइट। सो नाउ वी विल सी हीट बैलेंस इक्वेशन। So here we are going to see heat balance equation. So what will be the heat balance equation here? So let's suppose heat balance equation will be, suppose heat balance equation, heat balance equation, where in the case of non-periodic or transient heat conduction for lumped parameter, we are studying lumped analysis, lumped heat capacitance method, you can also call it as, right. So heat balance equation. So what will be heat balance equation? Let's write a statement here. When a solid body is quenched into liquid, when a solid body is quenched in liquid medium, heat balance equation is, the heat balance equation will be heat balance equation. जब एक सॉलिड बॉडी को लिक्विड मीडियम में क्वेंच करते हैं तो इन दैट केस हमारा जो हीट बैलेंस का इक्वेशन बन करके आता है वो क्या आएगा, वही हमें देखना है यहाँ पे, राइट। तो हीट बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा जी? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड बॉडी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ internal energy of solid body will be equal to heat transfer by convection from solid to liquid. Heat transfer by convection, heat transfer by convection from solid to liquid, from solid to liquid. What does it mean? If solid body is being quenched into the liquid medium, क्या होगा जी? उस कंडीशन में क्या होगा कि सॉलिड बॉडी का इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, और यही चूंकि एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होता है, तो इंटरनल एनर्जी का अगर लॉस हो रहा होगा तो ये एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जा रहा होगा, और वो कन्वर्जन क्या है, तो वही आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है कॉन्वेक्शन से, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कहने का मतलब ये जो आपका सर यहाँ पे था, ये जो आपका सॉलिड बॉडी है, यहाँ से हीट का ट्रांसफर आपका कंडक्शन से कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा, और यही एनर्जी आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन से कन्वेक्शन, यानी ये वाला सरफेस से लेकर के लिक्विड मीडियम के इस वाले जोन तक, ये वाला, ये आपका हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन है, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, because energy is conserved in a system, so one form of energy is getting converted into another form, that is convection heat transfer. अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन हम लोग देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन को आप लोग समझेंगे यहाँ पे ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इक्वेशन क्या बनेगा? चूंकि ये हीट ट्रांसफर आपका है, माइनस ऑफ एम सी पी डी टी अपॉन डी टॉ, ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज। कहने का मतलब एम सी पी डेल्टा टी तो होता ही आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी या हीट का ट्रांसफर, वो आपका माइनस एम सी पी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने एक निगेटिव का साइन लगाया है। ये मास हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, और ये डी टी अपॉन डी टू क्या होगा? चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस विल बी इक्वल टू heat transfer by convection, that is H A T minus T infinity, T minus T infinity. Why it is T? Because temperature आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे सपोज Ti था,
एक कंडीशन के बाद ये टेम्परेचर T हुआ होगा और बाहर का जो टेम्परेचर है वो आपका T इन्फिनिटी है। तो जब dt अपॉन डी टो लिए यहाँ पर चेंज, यानी ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में हम T लेंगे, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर टाइम, और विच हैज बीन चेंज्ड आफ्टर सम टाइम टॉ, एच ए टी इंटू टी इन्फिनिटी। अब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के केस में क्या होता है, Cp इज इक्वल टू Cv, ये हम लोग जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है सॉलिड में, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उसका चेंज काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है ऑलमोस्ट, इसलिए Cp और Cv ऑलमोस्ट इक्वल है। अब अगर इक्वल हो गया तो इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करते हैं, क्या आता है, ये हो जाएगा आपका मास को, और हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, तो मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी भी लिख सकते हैं, राइट। इस इक्वेशन को और हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मास को आपको डेंसिटी इंटू वी, और सीपी तो है ही ऑलरेडी, सीपी इंटू डी टी अपॉन डी टॉ, राइट। दिस विल बी इक्वल टू एच ए टी माइनस टी इन्फिनिटी। ये इक्वेशन हमारा बन गया, क्लियर। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और आगे इसको सॉल्व करिए। एक स्टेप जब आप आगे लेकर के जाएंगे तो बनेगा, ये माइनस का साइन यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस एच ए माइनस ऑफ एच ए अपॉन एम सी पी, एम सी पी, फिर से हम वही वाले ले लिए हैं, ये एच ए था और ये एम सी पी, तो माइनस यहाँ आ गया और ये एम सी पी आ गया, तो माइनस एच ए अपॉन एम सी पी आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा बताइए, ये इक्वेशन और क्या बन जाएगा, और डीटो, डीटो साथ में डीटो को रखिए, ये वाला करेक्ट, ये एच ए हो गया, एच ए ये वाला इधर आ गया है, और ये डीटो आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बनेगा, डी टी अपॉन, दिस विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी। ये इक्वेशन बन के आ गया। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। क्या किए हैं, ये एच ए वही रहेगा, माइनस का साइन लगा दिए हैं, तो माइनस एच ए, उसके बाद ये एम सी पी है, एम सी पी लगा दिए, ये डीटो चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आ गया है। अब क्या बचेगा, तो टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन डी टी, ये सॉरी डी टी अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी, ये चीज हमारा यहाँ पर बचा, जो कि इक्वेशन ये बना है। और यही इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को आप लोग याद रख लीजिए। कौन सा इक्वेशन को, क्योंकि इंटीग्रेट हम इसी पे करेंगे, माइनस ऑफ एच ए अपॉन एम सी पी, दिस इज और साथ में है डी ऑफ टॉ, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल विथ डी टी अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी। ये इक्वेशन है लम्प्ड हिट एनालिसिस या लम्प्ड हिट पैरामीटर का। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करके देखते हैं कि आखिर ये पूरे टाइम, जब ये एक इंस्टेंटेनियस टाइम डीटो हुआ था तो आपका ये वैल्यू हुआ है, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे हमारा ये वैल्यू क्या बन करके आएगा, करेक्ट। इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर देखना है। एक इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन के आएगा, ये तो इक्वेशन बन जाएगा जी आपका यहाँ पर, यही वाला इक्वेशन आपका कन्वर्ट होकर क्या आ गया, इक्वेशन क्या था मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, डी टी अपॉन टी माइनस, एक सेकेंड, डी टी अपॉन this was our right, so equation was dt upon t minus t infinity, dt upon t minus t infinity, this was equal with minus of h a, minus of h a upon m c, आप p लिखिए v लिखिए कोई बात नहीं, एक ही है क्योंकि सॉलिड के लिए तो सेम होता है, इंटू डी टॉ, ये आपका वैल्यू बना था। इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस एच ए डी टॉ डिवाइडेड बाई, एम को हम लोग क्या लिखे थे, रो इंटू वी,
इंटू सी पी। कहाँ से आया ये? तो चूंकि हम लोग जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, मास को हमने रो इंटू वी में लिख दिया, राइट, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करें, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये? इनिशियल में टेम्परेचर इसका टी आई था, और ये कहाँ तक जा रहा है? तो टेम्परेचर टी तक जा रहा है। कौन सा इक्वेशन? तो डी टी अपॉन टी माइनस टी इंफिनिटी, एंड दिस वॉज इक्वल विथ, कहाँ से? ये टी आई कब हुआ था बाउंड्री कंडीशन में? जब टाइम जीरो था। कहने का मतलब जब हम सॉलिड बॉडी को लिक्विड मीडियम में, ये लिक्विड मीडियम में जब सॉलिड बॉडी को रखे थे, जब टी आई था, तो उस समय टॉ टाइम आपका जीरो था। जब इसका टेम्परेचर टी हो गया था तो टॉ हो गया था, ये टाइम टॉ हो गया। जब टाइम जीरो है तो टेम्परेचर टी आई है, जब टाइम टॉ हो गया है तो टेम्परेचर टी है। ये आपका बाउंड्री कंडीशन हो गया। दो बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पर। दिस इज दी बाउंड्री कंडीशन, टू बाउंड्री कंडीशन। वे टाइम इज जीरो टेम्परेचर इज टी आई, वेन टाइम इज टॉ टेम्परेचर इज टी। तो जब टी आई था तो आपका टाइम जीरो था, जीरो टाइम पे आपका टेम्परेचर टी आई। जब टाइम आपका टॉ हो गया है तो टेम्परेचर टी बन गया है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ एच ए डी टॉ अपॉन अपॉन रो इंटू वी सी। सी पी को हमने सी लिखा है, क्यों? सॉलिड बॉडी के लिए सी पी सी बी इक्वल टू सी, ये सेम होता है। किसके लिए? सॉलिड के लिए। आप लोग को भली भांति ये चीज़ मालूम है, ये सॉलिड बॉडी के केस में सेम होता है, करेक्ट। ये आपका बना। अब इसको इंटीग्रेट करो। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये एल एन आ जाएगा, एल एन ऑफ टी माइनस टी इंफिनिटी, एल एन ऑफ टी माइनस टी इंफिनिटी। कहाँ से कहाँ तक जी? टी आई से टी तक, एंड दिस वॉज इक्वल विथ माइनस ऑफ एच ए, ये चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगा, अपॉन रो वी सी, ये बाहर आ गया। क्या बनेगा? सिर्फ अंदर में टाइम बनेगा। टाइम कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टॉ तक, ये चीज़ है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो। जब आप इसको और अब इंटीग्रेट कर दिए हैं, लोअर लिमिट और हायर लिमिट को पुट कीजिए, तो इक्वेशन बनेगा टी माइनस टी इंफिनिटी, ये वाला एक बार रखेंगे और एक बार ये वाला रखेंगे, डिवाइडेड बाय टी आई माइनस टी इंफिनिटी विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर, ई टू दी पावर क्या बनेगा ये? माइनस एच ए टॉ, ये वैल्यू आ जाएगा एच टॉ। एक बार जीरो रखेंगे तो टॉ का आपका ये हो जाएगा माइनस एच टॉ अपॉन रो वी सी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा हुआ सॉल्व करने के लिए। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनेंशियल एंड हीट लम्प्ड पैरामीटर का केस है ये, हीट लम्प्ड पैरामीटर। दिस इज हीट लम्प्ड पैरामीटर केस, हीट लम्प्ड पैरामीटर केस। इसको और क्या बोलते हैं? क्योंकि ये वाला क्या है आपका एक्सपोनेंशियल है, तो आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनेंशियल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो अब तक हम लोग जो देखा है कि जब सॉलिड बॉडी प्लेन वॉल के केस में हम लोग पढ़ रहे थे तो आपका क्या था? वो लीनियर था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब सिलेंड्रिकल का केस देखे थे तो लॉगरिथमिक था। यहाँ पर आपका क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल हो गया है। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन या नॉन पीरियोडिक हीट ट्रांसफर लम्प्ड पैरामीटर के केस में आपका जो इक्वेशन बना ये बना, याद रखना है आप लोग को। इक्वेशन क्या है आपका? T माइनस टी इंफिनिटी, टी मतलब टॉ टाइम पे टेम्परेचर टी, टी इंफिनिटी मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। कौन सा इन्वायरमेंट? जिस इन्वायरमेंट में सॉलिड बॉडी ये वाला रखा गया है क्वेंच होने के लिए। और इन्वायरमेंट कौन सा है? तो लिक्विड है, इसके लिए इन्वायरमेंट। ये टेम्परेचर, तो यहाँ की बात कर रहा है ये टी इंफिनिटी, अंदर की बात कर रहा है इस जोन की। टी आई आपका
कोई इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर जब सॉलिड बॉडी को क्वेंच होने के लिए रखे हैं, टी इन्फिनिटी आपका यही वाला टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन बनी एक्सपोनेंशियल एच हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए आपका सॉलिड बॉडी का सरफेस एरिया, टाउ आपका टाइम हो गया, रो आपका हो गया डेंसिटी, बी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी और सी हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड बॉडी। So here C will be Cp or Cv, both are same equivalent because in case of solid body Cp and Cv is same. So this is very much important equation. यहाँ से गेट एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू आपका दिया रहेगा और टाइम कैलकुलेट करने के लिए देता है, सारा कुछ दिया रहेगा और बोलेगा बताइए कितना टाइम के बाद टेम्परेचर Ti से T बन जा रहा है, या आपको ये दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा, तो बोलेगा कि बताइए इतना टाइम के बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो दो तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और ये दोनों तरह के क्वेश्चन गेट में लगभग अब तक 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच ए टाउ अपॉन रो वी सी। आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा चीज बताया है कि सॉलिड बॉडी क्या है, लिक्विड मीडियम कौन सा है, कहाँ पर कौन सा वैल्यू है, ये सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक देखा है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि और क्या हो सकता है। अब हम लोगों को देखना है, चूंकि इक्वेशन हमारा क्या बन के आया है जी, तो टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच ए टाउ अपॉन रो वी सी। अब हम लोग को थोड़ा सा इसको क्या करें, एक्सप्लोर करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू रो वी सी है, मान लो ये रो वी सी है अपॉन एच ए, हाँ इसको देखते हैं क्या होता है, कौन सा वैल्यू, ये रो वी सी अपॉन एच ए, इसको हम लोग देख रहे हैं ये वैल्यू क्या होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू, रो क्या होगा, रो का आपका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आप लोग को मालूम है ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये इनटू इसका यूनिट देखते हैं, वी आपका क्या है वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब, इनटू सी स्पेसिफिक हीट, आप लोग को पता है क्या होता है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, डिवाइडेड बाय एच ए, एच का यूनिट क्या होता है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, एरिया क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आप लोग कैंसिल आउट करिएगा, तो वैल्यू आपका फाइनल जो बन करके आएगा वो वैल्यू बन के आएगा जूल अपॉन वॉट, ये बन के आएगा। और जूल अपॉन वॉट क्या हो जाएगा, तो जूल अपॉन वॉट होता है आपका सेकेंड होता है ये चीज, ये क्योंकि वॉट क्या होता है जूल पर सेकेंड होता है, अरे जूल पर वॉट मतलब जूल, और वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड ही तो होता है, कहने का मतलब जूल अपॉन जूल इंटू सेकेंड, कैंसिल आउट होगा, सेकेंड बचेगा। इसका मतलब ये वाला जो यूनिट है, ये वाला जो यूनिट है यहाँ से रो वी सी अपॉन एच ए, ये आपको एक टाइम को डिनोट कर रहा है, सेकेंड है मतलब एक टाइम को डिनोट कर रहा है, ये वाला इक्वेशन आपका टाइम का डिनोट कर रहा है। यहाँ पर रो वी सी अपॉन एच ए मतलब कि डिवाइड होगा, ध्यान रहे ये एच ए नीचे है, ये एच ए जो है यहाँ से कैंसिल आउट होकर के एच ए यहाँ आ गया है, तो ये वाला टाइम यानी ऊपर में टाउ हो गया टाइम, नीचे भी आपका टाइम हो गया, तो नीचे जो टाइम आया उसको हम लोग टाउ स्टार बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ स्टार से, दोनों को सेम नहीं रख सकते हैं तो इसको हम लोग टाउ स्टार बोलते हैं, एंड दिस टाउ स्टार इज कॉल्ड एज थर्मल टाइम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल टाइम कांस्टेंट, थर्मल टाइम कांस्टेंट। इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा जब हमने ये चीज देखा है तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच ए टाउ अपॉन रो वी सी, और this can also be written as e to the power minus tau, पहले से था, divided by tau star,
टाउ अपॉन टाउ स्टार, ये वाला टाउ स्टार आपका आ गया यहाँ पर। तो ये इक्वेशन बन के आया। पहले वो इक्वेशन था, थोड़ा सा और एलेबरेट किए तो ये आ गया। यहाँ पे टाउ क्या है, तो थर्मल टाइम कांस्टेंट है, और ये टाउ क्या है, तो ये टाइम है, ये कांस्टेंट है और ये आपका टाइम है, ये चीज बना। थोड़ा सा इसको और आगे लेकर के चलते हैं, समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं इसको क्लासीफाई करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आपका एच ए टाउ है ना, एच ए टाउ अपॉन रो बी सी, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच ए टाउ अपॉन रो बी सी है, इसको हम लोग लिखते हैं एच ए टाउ अपॉन रो बी सी इनटू, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ एरिया से, वॉल्यूम और थर्मल कंडक्टिविटी, नीचे डिवाइड कर देंगे एरिया, वॉल्यूम और थर्मल कंडक्टिविटी, मेरा मर्जी है, ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो एच ए टाउ अपॉन रो बी सी को एच ए टाउ अपॉन रो बी सी इंटू एरिया, वॉल्यूम और थर्मल कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, एच ये रहेगा, वी वी अपॉन ए को हम साथ में ले लेते हैं, एच हो गया, ये वी और ये एरिया, वी अपॉन ए को हम एक साथ ले लेते हैं एच के साथ, यानी वी अपॉन एरिया जो यहाँ वाला पोर्शन है वो एच के साथ आ गया, करेक्ट। और डिवाइड करते हैं के से, साथ में के आ गया यहाँ पर। क्या क्या बचेगा अब बचा यहाँ पर जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, ये वाला ए और ये वाला ए, आपका ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, राइट। और क्या बचेगा, एक के बच रहा है, के बचा, और क्या बचा है, टाउ बचा है, टाउ डिवाइडेड बाई यहाँ से रो, ये बी और ये वाला बी, बी स्क्वायर इंटू ये वाला सी बचा, ये वाला वैल्यू आपका बच गया, यानी एच वी अपॉन ए डिवाइडेड बाई के इंटू ए स्क्वायर इंटू के टाउ अपॉन रो बी स्क्वायर सी, ये चीज बचा है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, समझना थोड़ी सी गौर से, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा और समझिएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ ये वाले पोर्शन को, ठीक है, ये वाला पोर्शन को इरेज करके मैं उसको एलेबरेट जो किए हैं उसको हम लोग देखते हैं कि और क्या बनता है। तो ये जो इक्वेशन आपका बना है, इस इक्वेशन को हम लोग फूरियर नंबर और बायट नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फूरियर और बायट नंबर में। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारा और क्या बन करके आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को भी देखना है आप लोग को, राइट। देखते हैं कि क्या बनता है। मैं दूसरा स्लाइड नहीं लेकर जा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर हमारा सब चीज़ है तो वो कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, करेक्ट। तो देखते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन और क्या बनेगा, देखिए, एच वी अपॉन ए है ना, ये वॉल्यूम होता है और ये एरिया होता है, वॉल्यूम मीटर क्यू, एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यू अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर बचेगा, यानी वो लेंथ को डिनोट कर रहा है। ये इक्वेशन जो है आपका यहाँ पर, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए क्या बनेगा, एच एल अपॉन के बन जाएगा, वी अपॉन ए को हम लोग क्या लेंगे, एल, तो हो गया एच एल अपॉन के इंटू इंटू क्या बनेगा, अल्फा इंटू टॉ बन जाएगा, अल्फा इंटू टॉ डिवाइडेड बाय वी अपॉन ये जो है यहाँ पर ये ए स्क्वायर है ना, इसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा वी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या मतलब वी अपॉन ए का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर इनफैक्ट, एक सेकेंड, ये हो गया आपका v अपॉन ए का टोटल होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो है ये टोटल का होल स्क्वायर है, करेक्ट। क्या मतलब हुआ, ये h है, v अपॉन ए को हमने l लिखा, ये k आ गया, ये जो आपका हमने अल्फा क्यों लिखा है बताएंगे, पहले समझ लो, ये टॉ को हमने एज इट इज टॉ लिख दिया यहाँ पे, और v और ये a नीचे आएगा a, तो v अपॉन ए का होल स्क्वायर बना। ऊपर में क्या बना था, k, ऊपर में बचा था k अपॉन रो सी, तो k अपॉन रो सी आप लोग को पहले पढ़े होंगे, आप लोग फर्स्ट ये यूनिट नंबर 1 में हम लोग देखे हैं, k अपॉन रो सी को हम लोग थर्मल डिफ्यूजिविटी या अल्फा बोलते हैं,
उसको हमने रिप्लेस कर दिया है के अपॉन रो वी सी पी को, के अपॉन रो सी। ये चीज होता है अल्फा, आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये बन गया के, ये आपका ऊपर में ये अल्फा इंटू टॉ रह गया, ये अल्फा तो छोड़ो अभी, टॉ रह गया सिर्फ, तो ऊपर में के बचा, क्योंकि ए स्क्वायर भी यहाँ डिवाइड करते तो रो इंटू सी, तो के अपॉन रो सी को थर्मल डिफ्यूजिविटी या अल्फा बोलते हैं। इसको हमने अल्फा से डिनोट कर दिया है। इसका मतलब समझना आप थोड़ा सा और गौर से, एक लाइन और है, समझिएगा। एच एल अपॉन जो के है, इसको हम लोग लिख लेते हैं एच एल अपॉन के इंटू अल्फा इंटू टॉ अपॉन बी अपॉन ए का होल स्क्वायर है, इसको बोलेंगे अल्फा इंटू टॉ डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दो नॉन डायमेंशनल नंबर्स आ जाते हैं पिक्चर में। वो नॉन डायमेंशनल नंबर्स क्या है? ये जो एच एल अपॉन के है, इसको हम लोग बोलते हैं बायट नंबर, BIOT, बायट नंबर। This is called Biot number and denoted by capital B into a smaller I, Biot number, right? अल्फा टॉ अपॉन एल स्क्वायर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर नंबर। दिस इज कॉल्ड फूरियर नंबर, दिस इज फूरियर नंबर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एफ कैपिटल नॉट, एफ नॉट। क्या मतलब? इस इक्वेशन को और हम लोग लिख सकते हैं बायट नंबर इनटू फूरियर नंबर। तो ये इक्वेशन बना, कौन सा इक्वेशन बना है ये? यही वाला इक्वेशन जो आपका है ना, रो बी सी अपॉन एच ए, ये आपका बायट नंबर इनटू फूरियर नंबर बन गया है। यानी इसको और हम क्या लिख सकते हैं? तो जो इक्वेशन बना था, अब मैं इसको, इस इक्वेशन को एक लाइन में इसको और हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो एक बड़ा सा इक्वेशन बनेगा, और इस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है। क्या बनता है जी इक्वेशन? एच एल अपॉन के, इक्वेशन बन गया आपका एच, यहाँ पर क्या था, एच एल अपॉन के इंटू अल्फा इंटू टॉ अपॉन एल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज बायट नंबर इंटू फूरियर नंबर। ये कौन सा है? तो ये वही वाला नंबर है जो रो बी सी अपॉन एच टॉ था। अब इस चीज को हम तीन इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर बी आई क्या है? बी आई इज बायट नंबर, बायट नंबर, राइट। और ये बायट नंबर क्या है आपका? एच एल अपॉन के, एच एल अपॉन के। एफ नोट क्या है? एफ नोट इज फूरियर नंबर, फूरियर नंबर, एंड दिस अल्फा टॉ अपॉन एल स्क्वायर। याद रखना है आप लोग ये दोनों, करेक्ट। इसका मतलब एल, जो यहाँ पर अब थोड़ा कॉन्सेप्ट है समझना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। एल जो है, उस एल को हम लोग वी अपॉन ए बोले हैं। वी क्या होता है? अब इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, याद रहे, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इट इज नॉट लेंथ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अपॉन एरिया हम ले रहे हैं। इसको एलसी भी बोलते हैं, एल को एलसी से भी डिनोट करते हैं। और क्या लिख सकते हैं तो बायट नंबर को? तो जो बायट नंबर आपका है एच एल अपॉन के, इसको हम क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, एरिया इधर भी और एरिया इधर भी। क्या बनेगा? ये इक्वेशन एल अपॉन के हो गया, एल अपॉन के, ये वाला एल रहेगा, ये तो के है ही, राइट। तो ये हमने ए से ले आया यहाँ, एल अपॉन के ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एच ए हम लोग लिख सकते हैं। एच ए ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, तो एल अपॉन के इंटू एच ए, तो आपका हो गया ना एच ए एल अपॉन के ए, ये चीज़ें। और एल अपॉन के ए क्या होता है? तो आप लोग को पता है, आर कंडक्शन होता है। डेल्टा अपॉन के ए आर कंडक्शन होता है। 1 अपॉन एच ए क्या होता है? आर कॉन्वेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बायट नंबर क्या है, तो समझिएगा यहाँ, इसका मतलब बायट नंबर बी आई नंबर इंडिकेट्स conduction resistance of solid to convection resistance to liquid medium. It indicates conduction resistance of solid, conduction resistance of solid
conduction resistance of solid to convection resistance to convection resistance, conduction resistance of solid to convection resistance to liquid medium, to liquid medium। तो ये चीज है, इतना आपको समझना था। इसका मतलब और ये जो फूरियर नंबर वो क्या शो कर रहा है जी, ये जो फूरियर नंबर है ये क्या शो कर रहा है, एफ नॉट हमें शो कर रहा है कि एफ नॉट मतलब अल्फा टाउ अपॉन एल स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक एल सी, कैरेक्टरिस्टिक वी अपॉन ए। याद रहे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो एल सी की जगह वी अपॉन ए यूज करूंगा और वर्ड यूज करूंगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो याद रहे लेंथ नहीं है ये कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इंडिकेट्स डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन, तो ये याद रहे, इट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन, डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन of heating or cooling effect into solid body, of heating or cooling effect of solid body। कहने का मतलब कि सॉलिड बॉडी जो आपका है वो क्वेंच कर रहे हैं, वो किस हिसाब से लिक्विड कूल होगा या हीट होगा, उसका पेनेट्रेशन क्या होगा, वो आपका फूरियर नंबर डिनोट करता है। तो बायट नंबर क्या होगा, फूरियर नंबर क्या होगा, ये सब चीज हम लोग देख लिए हैं, राइट। इतना चीज हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक देखा है। अब जो आपका केस देखे थे यहाँ पर, इस केस को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे सेकेंड लेक्चर में। आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।